ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਹੀਰੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਜਨਰਲ DS ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ करके उन्होंने मारिया गया। इस चीज़ ਨੂੰ सर तुसी किवें देखदे हो? अगर हम आप ऐसे समझें कि भाई 4-5 टेररिस्ट घूम रहे थे उस इलाके में, उन्होंने देखा कि वहाँ टूरिस्ट आ गए और फिर उन पर हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्लानिंग हुई है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ये हम बोलते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ PM ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ US ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ TRS, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ, ਜਿੱਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ J&K ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਹੀਰੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਜਨਰਲ DS ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ। थैंक यू, शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਪਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਲਾਕੋਟ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? देखिए, कुछ कदम तो उठा लिए हैं ऑलरेडी, डिप्लोमेटिक कदम, और जिसमें कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने का जो बयान है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान में किस तरह की डिपेंडेंसी है, जो पानी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से फ़्लो करता है उधर जी,
उसका उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है जी जी जी। पाकिस्तानियों के ऊपर। मैं ये भी कहूँगा कि डिप्लोमेटिक स्टेप्स तो ले लिए हैं, और उसके बाद जिस तरह का प्रधानमंत्री का बयान आया है कि हम मिलिट्री स्टेप्स भी ले सकते हैं, और ये किस तरह से लिए जाएंगे, कब लिए जाएंगे, किस तरह का प्लान बनेगा, ये अब उन्होंने मिलिट्री सर्विस चीफ्स के ऊपर छोड़ दिया है। इसके बाद सर्विस चीफ्स अपना प्लान बनाएंगे, और उसका फाइनल अप्रूवल तो खैर प्रधानमंत्री ही देंगे, लेकिन किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरह से ये काम किया जाए, ये सर्विस चीफ्स के ऊपर है। तो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल अभी तक ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं होगा। अच्छा, तो हमने जैसे पास्ट में देखा पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। सर, क्या वॉर इंडिया ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, क्या वॉर अफोर्ड करते हैं दोनों देश? देखिए, चाहते नहीं हैं हम कि लड़ाई हो, क्योंकि आज जैसे आपने बोला इकोनॉमिक डैमेज होगा, हम पर कम होगा, पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन इस हालात में, जबकि जिस तरह का टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ है, जिस तरह से एक कौम के लोग निकाल कर कि बस उन्हीं को मारा जाएगा जी, इसमें अब कुछ रिस्पांस तो इंडिया को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे पाकिस्तान लगातार ऐसी कार्रवाई करता रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है, तो ना चाहते हुए भी, कि अब फुल स्केल वॉर हो। मैं नहीं सोचता कि जो हमारा मिलिट्री रिस्पांस होगा वो ऐसा होगा कि हम पूरा हाँ, जिस तरह पूरी तरह की, जिस तरह हाँ, कि 1971 टाइप की लड़ाई हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा। तो कुछ लिमिटेड तरीके से, जिस तरह से आपने देखा था 2016 में स्ट्राइक सीगा, इस तरह पॉइंटेड अटैक्स हो सकते हैं। हाँ, तो मुझे मानना है कि इस तरह के कुछ स्पेसिफिक पॉइंटेड अटैक्स होंगे। उसके बाद हो सकता है कि एस्केलेट हो जाए, बढ़ जाए थोड़ा सा, उसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। पर मुझे ये नहीं लगता कि ऑल आउट वॉर की अभी इस तरह की कोई सोच है। सर, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੜਕਾਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ टाइम एक्सपीरियंस है। देखिए, हमेशा यही होता है कि जब भी कुछ बड़ा टेररिस्ट अटैक है और इंडिया कहता है कि हम इसका जवाब देंगे, तो आप देखेंगे पाकिस्तान से इस तरह की स्टेटमेंट आनी शुरू हो जाती हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और ये ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को डराने के लिए कि बस अगर कुछ हुआ तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी। लेकिन 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ, उससे इंडिया ने दिखाया है कि ये नहीं है कि कुछ मिलिट्री फोर्स जैसे ही इस्तेमाल होगा एकदम से वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो जाएगा। ये हम बोलते हैं कि ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। अच्छा, हाँ, ये शब्द इस्तेमाल होता है कि हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, और इंडिया ने ये दिखाया है कि देखो ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। ये 2019 ਚ दिखाया। हाँ, जैसे हमने 2016 और 2019 में किया था। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ लिमिटेड ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें डरना चाहिए कि एकदम से दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर लड़ाई हो जाएगी। ये सिचुएशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? नहीं आएगी। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਨਾ ਛਿੜ ਜਾਏ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया ਤੇ ਬਣੇਗਾ ग्लोबली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि फिर ये माइंड गेम है? ਕੀ है? हाँ हाँ, बिल्कुल माइंड गेम है, और यही है कि ये दिखाना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि देखो, अगर इंडिया ने कुछ किया तो यहाँ पर साउथ एशिया में एक बिल्कुल न्यूक्लियर लड़ाई और न्यूक्लियर हॉलोकास्ट हो जाएगा।
कोशिश यही है कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया पर प्रेशर बनाए कि देखो कोई मिलिट्री कदम मत उठाओ। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, ये इसका लिमिट है, और इंडिया ने ये दिखा दिया है पास्ट में भी कि जहां हमको मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करना होगा तो हम करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट में हम जो एक्शन हमको लेना है वो हम लेंगे। सर, एक चर्चा है कि ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵਾਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਆਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ और एक ਕੀ ਚੀज़ है? देखिए, ऐसी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है नहीं, ना ही ऐसा कुछ मतलब समझौता है किसी के बीच में कि आपको हम डिसआर्म कर देंगे। जो बात होती है वो है कि जैसे किसी फॉरेन कंट्री ने आपको इक्विपमेंट दिया, उसके सॉफ्टवेयर में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ डाल दी कि उसका कंट्रोल उनके पास है और उस इक्विपमेंट को इनफेक्टिव बना दो या इस्तेमाल न कर सकें। तो इसको बोलते हैं कि कभी कभी कि किल स्विच। अच्छा, हाँ, किल स्विच क्या मतलब है? मतलब उसमें ऐसा कुछ स्विच है कि जो कि ओरिजिनल वेपन को किल कर सकता। हाँ, मैन्युफैक्चरर के पास है तो उस वेपन को डिसआर्म हो जाएगा, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस तरह की बातें हैं, लेकिन ऐसी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी तो है नहीं, और न ही अभी तक कुछ ऐसा इस्तेमाल हमने देखा है। लेकिन आपको मालूम है साइबर कैपेबिलिटी है लोगों के पास। ये डर भी है कि जैसे हम चाइनीज़ इक्विपमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, हाँ जी, क्रिटिकल एरियाज़ में। जैसे हमने पावर में अब बोला है कि हम चाइनीज़ इक्विपमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि यही डर होता है कि जो इक्विपमेंट आती है उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो सोर्स कोड है, वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पास है। अब उसमें किस तरह से वो इंटरफेयर कर सकता है पता नहीं होता। ये चीज़ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा जाता है। और वेपन ही नहीं, सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया, हमने बोला है कि हमारी टेलीफोन इंडस्ट्री में हुआवे नहीं होगा, ZTE नहीं होगा, चाइनीज़ कंपनीज नहीं होंगी। क्यों हम बोलते हैं ये? क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी है कि कुछ साइबर अटैक से, और उनके पास पूरा उसका सोर्स कोड है, किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ नहीं है? ये बिल्कुल अलग किस्म की है। जैसा आपने बताया कि आमतौर पर टूरिस्ट को टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम से लोकल इकॉनमी पर फ़र्क पड़ता है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो टूरिज़म पर बहुत डिपेंडेंट हैं, और तो इसीलिए पहले इस तरह का हमला नहीं हुआ। दूसरा, जिस तरह से आपने बोला कि धर्म पूछ के उनको अलग से निकाला गया, उनकी बीवी बच्चों के सामने उनको गोली मार दी, बिल्कुल, तो ये तो एक अलग ही किस्म नहीं है, जैसे बोलते हैं बहुत ही बड़ा प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन है, हाँ, कि अब उनको मालूम है कि इस तरह का अगर हमला करेंगे तो इंडिया पक्का रिएक्ट करेगा। ਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੋकेशन शब्द है। देखिए, टेररिस्ट अपने आप तो नहीं करेंगे कि अगर हम आप
ऐसे समझें कि भाई 4-5 टेररिस्ट घूम रहे थे उस इलाके में, उन्होंने देखा कि वहाँ टूरिस्ट आ गए और फिर उन पर हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्लानिंग हुई है। ये प्लान्ड अटैक है ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल ਲੱਗਦਾ? प्लान अटैक है। किस तरह ਦੇ ਨਾਲ? देखिए जिस लोकेशन में उन्होंने हमला किया है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस कम थी, कम थी, हाँ। दूर थे वहाँ से। जिस तरह से जैसे हमने बताया कि सिर्फ मेल्स को टारगेट किया है, धर्म पूछ के टारगेट किया है, जिस तरह की स्टेटमेंट जैसे एक किसी की वाइफ जिसको मारा गया था उसको बोला कि जाके मोदी को बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोकल लेवल पर प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है, सीधा हाथ पाकिस्तान पर है। इसमें कोई शक नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने शुरू में कहा, वो रेजिस्टेंस फ्रंट TRF बोलते हैं उसको, TRF जी, TRF, उन्होंने कहा कि हमने किया है। तो ये TRF क्या है? ये TRF एक लश्कर तोयबा का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और लश्कर तोयबा वहाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये लोकल लेवल पर टेररिस्ट प्लानिंग नहीं है। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਲੱਗਦਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਪਲਾਨਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ पॉलिटिशियन तो इरेलीवेंट है वैसे। हाँ, जैसे आपने बोला पाकिस्तान पॉलिटिशियन बिल्कुल इरेलीवेंट है। वो तो बिल्कुल ही आर्मी चीफ के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई हमको पावर में रखा जाए। उनकी आर्मी आजकल काफ़ी प्रेशर में है। आप देख रहे हैं जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं उनके ऊपर। बिल्कुल। और वो कहते हैं कभी कभी कि इंडिया हाँ, इनकी मदद करता है। हाँ, बलूचिस्तान। चाइनीज़ प्रेशर भी बहुत आ रहा है उनके ऊपर। चाइना भी बोल रही है कि आप हमारे सिटीजन्स, उनके नागरिक मारे गए हैं चाइनीज़, और जो उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काफ़ी हमले हुए हैं। तो चाइना की तरफ से भी काफ़ी दबाव है आर्मी के ऊपर कि आप कुछ करिए। और तीसरा दबाव वहाँ लोकल पॉपुलेशन से भी है। वो कहते हैं कि जो उनका सबसे ख़ास पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो जेल में इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने ये सब इंजीनियर किया है, और हाँ, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। तो थोड़ा सा ये दबाव कम करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हम ही हैं जो इस देश को बचा सकते हैं। सोचते होंगे कि ऐसे हालात में पूरा देश उन आर्मी के पीछे आ जाएगा कि देखो यही हैं जो कि हमको इंडियन अटैक से डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें गई हैं उनके दिमाग में जब उन्होंने ये प्लान किया है। सर, पाकिस्तानी PM ने ये क्या कि ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि पाकिस्तान ਕਿਸੇ फेयर प्रोब ਲਈ तैयार हैगा? नहीं, आपने देखिए पहले भी देखा है हमने, फेयर प्रोब पठानकोट एयरबेस हमले के बाद भी उन्होंने कहा था, फिर कह दिया कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब कह रहे हैं कि न्यूट्रल प्रोब जिसमें और देश शामिल होंगे। एक तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, दूसरा क्योंकि इंटरनेशनल दबाव आता है पाकिस्तान के ऊपर। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अपने आप ही बोला है कि हाँ हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और हाँ, पिछला ऐसे US ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ हैं। हाँ, तो ये सब थोड़ा सा दिखाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमने ये नहीं किया है और हमारा हाथ इसमें नहीं है। इंडिया में ये मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई तीसरा देश आकर और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, और तो इंडिया को तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे ये बहुत
ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ हाँ, ये तो देखिए किसको किसको नहीं मालूम है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट ग्रुप्स का इस्तेमाल किया है। अब वो कह रहे हैं कि ये यूएस ने हमको कहा था तो हमने ये काम किया है। हाँ, सबको मालूम है, यूएस और ब्रिटेन, हाँ सबको मालूम है कि क्या वो पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि सिर्फ यूएसए के लिए कर रहा है। तो ये सबको मालूम है कि इस तरह की कार्रवाई बहुत साल से पाकिस्तान कर रहा है और उनका क्लियर हाथ है। मुंबई अटैक में देख लीजिए आप क्या। बिल्कुल। तो ये सब इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है और ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये सिर्फ थोड़ा सा दबाव कम करने के लिए आ रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ TRS, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? नहीं देखिए, आम तौर में आपने देखा होगा कि जब भी टेररिस्ट अटैक होता है तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो जिम्मेवारी लेती है। बिल्कुल। वो दिखाना चाहते, टेररिस्ट का मकसद क्या है, ये दिखाना चाहते हैं कि हम दहशत फैलाएं। ये नहीं कि सिर्फ आपको उन टूरिस्ट के खिलाफ कुछ है, पर ये दिखाना चाहते हैं कि भाई टेररिज्म जिंदा है, खौफ फैलाओ। आपने देखा है उससे टूरिस्ट वहाँ से निकल गए। ये उनका मकसद है। तो इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया। पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इंटरनेशनली और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, तो उस प्रेशर को थोड़ा सा दबाव को कम करने के लिए अब कह रहे हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देखी पाकिस्तान में जो कि कह रहे हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मतलब कि इंडिया ने खुद ही ये किया है। हाँ। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, मतलब पहले आई हैं स्टेटमेंट्स। हाँ, तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता, देखो इंडिया को छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई ये कहानी मान लेगा कि ये जो हुआ है ये इंडिया ने खुद ही अपने आप ही कुछ किया है पॉलिटिकल पर्पस के लिए। ये नहीं। जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਾਰ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है। देखिए इस पर साइकोलॉजिकल दबाव तो पाकिस्तान पर बहुत पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर पानी यहाँ से इंडिया की नदियों से नहीं जाता तो पूरे एग्रीकल्चर पर, उनकी एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इसके ऊपर लड़ाई हो सकती है। और उनके भुट्टो ने बोला कि अगर पानी नहीं दोगे तो फिर खून बहेगा, पानी नहीं बहेगा तो खून ये बहेगा। दिखाता है कि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर तो पड़ रहा है। और इंडिया, पाकिस्तान के लोगों का भी प्रेशर होएगा इस चीज़ पे। बिल्कुल होगा। और आप देखिए जो इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अबेंस में करते हैं जब तक कि पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बंद नहीं करता। तो डायरेक्ट लिंक है कि देखो इसको हम पानी रोकने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आप ये बंद करिए तो फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं।
ਯੂਐਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਸੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਵਾਰ ਅਗੇਂस्ट टेररिज्म हैगी है? देखिए, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जो मुद्दा है, सारे देश मानते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जी। टेररिज्म को रोका जाए। और आप देखेंगे कि इंडिया की जो पोजीशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो बढ़ ही रही है। आप देखिए इंडिया यूएस रिलेशन जिस तरह से अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। जो पाकिस्तान के पुराने दोस्त या सपोर्टर्स थे जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इंडिया और रिलेशंस जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ हैं वो अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और पाकिस्तान पहले अमेरिका पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट इसलिए देता था क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में थे, उनके ट्रुप्स, और जो पूरा सप्लाई लाइंस और लॉजिस्टिक्स और वो सब पाकिस्तान के थ्रू जाता था। अब वो हालत भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया कोई मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने की सोचेगा तो कुछ खास ऐसा प्रेशर आएगा कि जिसकी वजह से इंडिया अपना रास्ता बदल दे या मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल ना करे। इस तरह का प्रेशर मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर आ सकता है। सर, एक चीज़ जो मैं ਤੁਹਾਡੇ एक्सपीरियंस तो समझना चाहना, पाकिस्तान ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋर्ट ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ तरह ਦੀ एक्टिविटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, पहले हमने सुना था, खासकर जब रशिया अफगानिस्तान में था तो कुछ फंडिंग आती थी मिडल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया वगैरह से, जो कि जो तालिबान हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। बट अभी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी। या एक वर्ड असी यूज़ करते हैं टेरर फंडिंग, क्या इस तरह दी चीज़ां? देखिए, जो टेरर फंडिंग है, एक तो गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है उनको। बिल्कुल ठीक। और फिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी इस तरह से रेडिकलाइज हो गई है कि जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस निकलती हैं और पैसा मांगती हैं तो कुछ लोकल सपोर्ट भी है जो उनको फंडिंग दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फंडिंग फॉरेन से आ रही जैसे मिडल ईस्ट पहले होता था। इतना नहीं कि अब ओपनली किस तरह का सपोर्ट मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ से टेरर ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर तैयबा, जैश वगैरह को, लोकली इनको ज़्यादा सपोर्ट है। सर, J&K ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ। J&K ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜੌਬ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ J&K 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ J&K ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ J&K ਦੁਬਾਰਾ? देखिए,
अगर लोकल इकोनॉमी इफ़ेक्ट होगी, वहाँ के जो यूथ हैं उनको कुछ काम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि कुछ रेडिकलाइजेशन की तरफ वापस बढ़ जाएं। लेकिन ये पिछले 4-5 साल में वहाँ के लोगों ने ये भी देखा है कि अगर वायलेंस कम होगा, नॉर्मलसी होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इसका क्या फ़ायदा है। और एक जो अच्छी बात है, मतलब आप पहलगाम टेरर अटैक की बात करें तो उससे अच्छा क्या निकल सकता है, सोचना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से कश्मीर के लोग निकले हैं और जो उन्होंने बोला है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं, ये एक बहुत एनकरेजिंग साइन है। अब गवर्नमेंट को इसी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे JNK असेंबली का एक स्पेशल सिटिंग हुआ था 2 दिन पहले, उसमें भी सारी पार्टीज़ ने यही बोला है कि लोग अब इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो सेंटिमेंट अभी आया है, इसको थोड़ा और आगे ले जाने की ज़रूरत है। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ प्रोटेस्ट ਕੀਤੇ ਹੈ टेररिस्ट ਦੇ अगेंस्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ एक निकल के बहुत सामने अच्छी आई बात है। है ये ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। आप पहले हम सुनते थे कि टेररिस्ट मर गया है, उसके फ्यूनरल पर हाँ, हज़ारों लोग, लाखों लोग आ गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि ਉਹ terrorism ਸਿੰਪਥੀ के ਘਟੀ ਹੈ खिलाफ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, डिफाइन कर? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसा समय है कि, और ये एक ऐसा इंसिडेंट खैर खौफनाक है, लेकिन इसमें कुछ जो अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है कि भाई लोग अभी टेररिज्म के ख़िलाफ़ हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इस सेंटिमेंट को कैसे और मजबूत बनाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। मेरा अपना मानना है कि ठीक है, अभी एकदम से ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस बढ़ेंगे, लेकिन जैसे घर उड़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब ये सोच के चलो कि जो पॉपुलेशन अभी आपकी तरफ आ रही है, ऐसे कोई कदम ना उठाए जाएं कि फिर वो सोचें कि ये गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट है या कुछ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक ऐसा टाइम है कि थोड़ा सोचना कि किस तरह से हम कश्मीर को नॉर्मलसी की तरफ और ले जा सकते हैं ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ JNK 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ FIRs ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ सिचुएशन चेंज हुई? देखिए, कभी भी हमने देखा है तो इंडिया में इस तरह से काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में और अब जम्मू कश्मीर में। जब लोग आपके साथ हैं और जब लोग कहते हैं कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए, तभी नॉर्मलसी आएगी। तो इस तरह के इंसिडेंट जैसे आपने बोला कि ये घर उड़ा दिए, हाँ, और कुछ ज़्यादा क्रैकडाउन कर दिया, इसका कभी कभी हम बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कि फिर लोग जैसे बोलते हैं एलियनेशन, लोग सोचते हैं देखो ये गवर्नमेंट तो हमारे बारे में नहीं सोच रही है। तो इस तरह का सोच विचार हो तो मैं कह रहा हूँ अगर लोग हमारे साथ हैं, और हमने देखा है ये जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर जम्मू रीजन में 1990s में और अर्ली 2000 में जो वहाँ की लोकल गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी थी, उनके सपोर्ट की वजह से वहाँ का जो टेररिज्म है वो गायब हुआ था।
एक बड़ा फेमस ऑपरेशन हुआ था, उसका नाम था सर्पविनाश। सर्वनाश। सर्पविनाश 2003 में टेररिस्ट के खिलाफ। अच्छा। वहाँ एक बहुत बड़ा अड्डा था उनका। उसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, गुज्जर बकरवाल, उनका बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा। वहाँ की विलेज डिफेंस कमिटीज़ होती हैं, अच्छा। तो जो ऑल विमेन उसमें, उस विलेज डिफेंस कमेटी में सिर्फ औरतें थी। अच्छा। हाँ, जिन्होंने हथियार उठाए थे कि टेररिस्ट के खिलाफ। सारे मुस्लिम थे वो। तो जब लोकल पॉपुलेशन आपके साथ है, खबर भी आएगी, सपोर्ट भी मिलेगा। ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ JNK ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ JNK ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਜਾਂ ਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, ये तो कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान डिवाइड हो, बाकी देश में हिंदू मुसलमान डिवाइड हो। और हमने देखा है कुछ इंसिडेंट कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने काम किया है। ये अब हमारे ऊपर है कि हम जो जनता है, जो लोकल पॉपुलेशन है, कि किस तरह से इसमें नहीं आए। टेररिस्ट तो यही चाहते हैं कि भाई डिवाइड हो, हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम्स हो। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈंट ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, सोशल सिचुएशन ਨੂੰ ठीक रखे? हाँ, और क्या, गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि देखें कि इस तरह का डिवाइड ना हो। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित 1990s में निकले थे, उस तरह का कुछ अभी जम्मू कश्मीर में होगा। सिचुएशन उस टाइम और आज में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन टेररिस्ट तो यही चाहते हैं, पाकिस्तान तो यही चाहता है, ये बोलता है टू नेशन थ्योरी कि हिंदू मुसलमान अलग अलग लोग हैं। बिल्कुल। हमें इसमें देखना है कि उनकी जीत ना हो, हमारी जीत हो। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੀਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ? देखिए, मुझे कुछ सिमिलैरिटी दिख रही हैं कि बड़ा टेररिस्ट अटैक है, पर मुझे कुछ फ़र्क भी दिख रहा है क्योंकि 2016 में मिलिट्री टारगेट के ऊपर अटैक हुआ था। 2019 भी अगर आप देखें पुलवामा में, तो CRPF वो भी मिलिट्री टारगेट था। ये जो अभी सिविलियन टारगेट्स पर अटैक हुआ है, मैं मानता हूँ ये उससे बड़ा प्रोवोकेशन है। अच्छा। कि भाई सिविलियंस को आप निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, और इतना बड़ा सिविलियन अटैक जम्मू कश्मीर में बहुत सालों से हमने नहीं देखा है कि किस तरह से उन्होंने ये किया है। सिविलियन अटैक मुझे लगता 26/11 तो बाद है सब तो बड़ा है। हाँ, तो जैसा मैंने पहले बताया है कि बड़ा प्रोवोकेशन है, और हमने जब 2016 और 19 में एक मिलिट्री रिस्पांस दिया था, तो इस समय भी हो सकता है कि अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करें। फाइनल कंक्लूडिंग जे जनरल हुड्डा साहब कुछ आपके एक्सपीरियंस तो कुछ राय देना चाहन कि की हो सकता या होना चाहिए हैगा, किस तरह के नाल जे एक्शन ते होना ही है, की होना चाहिए? देखिए, अब मैं ये नहीं बोलूँगा किस तरह से हो, क्या हो। कैपेबिलिटी है हमारे पास, एक अच्छी वेल ट्रेंड आर्मी है, स्पेशल फोर्सेस हैं, तो ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारी एयरफोर्स के पास अभी हाल ही में रफ़ेल आ गए हैं, बड़े अच्छे एयरक्राफ्ट हैं।
जिस तरह की उनके पास हथियार हैं वो अपने साइड ही बॉर्डर के रहकर और दूसरी तरफ टारगेट्स को अच्छी तरह से अटैक कर सकते हैं। तो कैपेबिलिटी है। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ करेंगे तो पाकिस्तान चुप बैठेगा। बिल्कुल, तो रिटेलिएट तो करेगा वही। तो उसके रिटेलिएशन किस तरह से हो सकता है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर जिस तरह से कुछ अगर एक्टिविटी बढ़ती गई तो उसका क्या है प्लानिंग होना है। हम बोलते हैं जैसे एस्केलेशन मैनेजमेंट की, ऐसे यहाँ पहुँचेगा तो उसको वैसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब डिटेल्ड प्लानिंग की ज़रूरत है अगर हम कह रहे हैं कि हम मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਸੋਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸક્ષਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।